Hey all, welcome to mathsg.in. And by the way, this is our one of the beautiful student, standard student, Shreyas and Jit from mathsg.in. And here we are going to discuss something. Already we have completed the linear equations into variables, polynomials over, rational number over. Today is something like 4 days to end of the summer vacation. And we're closing to SVUT, summer vacation utility test. Is that? Yes, sir. Yes. So I was going through some cross questioning, like already we've done, and this is the exemplar book right now he's completing. Exemplar also he has done. He's not in a habit of doing a 30-40 problems in a single hour. He's like a student bent of mind towards literature more side, because he writes everything literal way, less mathematical way. So still then, we'll have to test his knowledge regarding whether securing the full marks or not. Securing the full marks is something like that you have done the problem, again you can analyze the problem to the maximum. Each and every bit of the problem you can analyze and justify that very correctly. So regarding that, from the linear equations into variables, I have given some questions. Let me show you that and the kind of answer the child has written. So these all discussions and whatever videos, vlogs and podcasts we are posting, this is all about whether our child is learning the topic, whether mathematics or English or SST, whatever it may be, with its own will and zeal. The zeal is there, the cross analyzing and that attitude is there or not, that is to check. And this is one of the good students to make that analysis show off. मतलब इसी के साथ ही पता चलेगा कि कितना अच्छा है, बिकॉज इट्स ए गुड स्टूडेंट, वो करता है, पढ़ता है, आंसर लिखता है, थोड़ा स्लो इन मैथमेटिक्स है, तो दोनों साइड में हुआ, एक अच्छे स्टूडेंट्स के हिसाब से भी जाएगा, एक नॉट गुड स्टूडेंट के हिसाब से भी कम्प्लीट, तो इसके साथ केस स्टडीज अच्छा लगेगा. सो लेट मी कम टू द पॉइंट. यहाँ पे फोकस, कुछ क्वेश्चंस हमने दिए थे, मैंने दिया था स्पेशली लिनियर इक्वेशन का चैप्टर खत्म हो चुका है ऑलरेडी. व्हेन दे आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशंस, उसका भी ये शॉर्ट चार्ट हमने कर चुके हैं. ये बच्चे ने नहीं किया है करके हमने ग्रीन में मार्किंग किए हैं. वी डू नॉट हैव एनी रेड मार्किंग, एवरीथिंग इज ग्रीन. बच्चे को हम स्ट्रेस नहीं देते हैं. यहाँ पे एक फाइनल क्रॉस क्वेश्चन आज कर रहा था, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कितने बड़े हैं when the solution of two linear equations into variables is consistent. तो उसके आंसर उसने लिखा है when any linear equation has a solution, ये वाला ब्लू में, when any linear equation has some solution. मैं इसलिए बोल रहा था इसका मैथमेटिकल बेंट कम है और लिटरल कम है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकली कुछ चीज़ दिखाना चाहिए था कि इस समय पे सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है. जैसे यहाँ पे उनका अगर कोफिशिएंट्स के रेशियोज और अनइक्वल हो जाएंगे तो दे हैव ए सॉल्यूशन एंड दैट इज व्हाट कंसिस्टेंट. और यहाँ पे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस अगर पैरेलल्स हैं तो भी हम बोलते हैं कि दैट इज कंसिस्टेंट. मेनी सॉल्यूशंस लेकिन कंसिस्टेंट, और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट. सो जहाँ पे नो सॉल्यूशन वहाँ पे इनकंसिस्टेंट, और जहाँ पे मेनी सॉल्यूशंस वहाँ पे कंसिस्टेंट. बाय द वे श्रेयस, ये वाला जो मैं आपको देख के बुक में लिख के यहाँ पे लिखने के लिए बोला था, What answer had you given when I asked you verbally just before this? तुम क्या बोले थे? इसको बोले थे parallel, correct? Yes. ठीक, correct. So now, when any linear equation has some solution, अगर है तो वो consistent है. तो solution consistent मैंने पूछा. The question is solution consistent कब है? तो उसने लिखा है जब solution हो तब. Is it a right answer? No. मतलब मैं अगर पूछूंगा, अगर पूछा जाएगा कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कब है, तुम बोलोगे जब सॉल्यूशन है तब वो कंसिस्टेंट है, ऐसा वाला आंसर? नो. क्या बोलना चाहिए मैथमेटिकली? यहाँ पे क्या बोलोगे कि हियर द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट? जो फर्स्ट कोएफिशिएंट किसी दो लीनियर इक्वेशन का, वो रट्टेबाज हुआ, क्योंकि वो फॉर्मूला रट्टा हुआ है. हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कब सॉल्यूशन है. Simply when there is unique solution, the linear equations are consistent. इतना ही बोलना है. जब यूनिक सॉल्यूशंस हैं तब वो कंसिस्टेंट है, या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो तो भी वो कंसिस्टेंट एक तरह से कहा जाता है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट. बेस्ड ऑन दैट कुछ और क्वेश्चंस हैं. मैंने ये पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि इक्वेशंस इक्विवेलेंट हैं
शो करो। शो करने के लिए दो इक्वेशंस लेके उसको दिखाना चाहिए था कि इक्विवेलेंट हैं। तो आप मुझे अभी एक्सप्लेन करो हाउ दीज टू इक्वेशंस, मैंने जो वीडियो में भी लिखा हुआ है ये सेकंड क्वेश्चंस, ये इक्विवेलेंट हैं, कैसे बोलोगे? हाउ विल यू जस्टिफाई? क्यों बोलोगे बताओ? या योर वे। ये है कोफिशिएंट ए 8, A1 हम इसे लेते हैं, 16 है A2। इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो आ गया 1/2, ऐसे 4/8, 4 और 8 को लेंगे 1/2 आया, -6 और -12 को लेंगे रेशियो 1/2 आया। तो इन तीनों के कोफिशिएंट्स के जो रेशियो हैं, लाउड एंड क्लियर, बी कॉन्फिडेंट वॉइस दिखाओ, ये वॉइस मत दिखाओ। इन तीनों कोफिशिएंट्स के जो रेशियो हैं ये इक्वल है, तो इसलिए हमने इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन तभी होगा जब तुम बोल रहे हो कि तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियोज इक्वल होंगे, तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, जैसे इस केस में हुआ है ये वाला। या तो तीनों कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट इक्वेशन हो जाएगा। यस। ओके, व्हाट आर द अदर टू काइंड्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस यू नो? एक वो इक्विवेलेंट, दूसरा होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो लीनियर इक्वेशंस का मैं पूछ रहा हूँ कि द काइंड्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस यू गेट, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, वन में से एक काइंड ऑफ पेयर को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पेयर, और इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन टू अनदर। बाकी दो पेयर्स में बाकी दो वेराइटीज क्या हैं? कुछ नहीं, तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दिया था। एक तो होता है इक्विवेलेंट इक्वेशन, दूसरे होते हैं कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, एंड थर्ड वन इज डिस्टिंक्ट। सो लीनियर इक्वेशंस जो डिस्टिंक्ट है, लीनियर इक्वेशंस जो कोइंसिडेंट है, लीनियर इक्वेशंस जो इक्विवेलेंट है। ये टी की तरह। हाँ ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग मैंने बताया ना, मैं मेरे हैंडराइटिंग मेरे राइटिंग पे मत देखना, तुम पढ़े नहीं हो, तुम पढ़े नहीं हो, चैप्टर में ये वर्ड नहीं देखे हो, चैप्टर कवर कर चुके हो, उसका आर डी शर्मा कवर कर चुके हो, A to Z सारा कवर नहीं किए हो, कुछ पोर्शंस कवर किए हो, हाँ, कुछ किया। तो मतलब कुछ किए हो तो हाँ। एक बार भी बंदा एक वर्ड देखता है तो नहीं बोलता है, तो तुम्हें कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? मतलब देखे हो या नहीं देखे हो, या देखे हो तो सही से एनालाइज नहीं किए हो, वही तो बात है। उसी पे बात हो रहा है कि एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? जिसको एक बार कोई चीज़ दिखा दो वो उसको इतना एनालाइज क्रॉस वेरीफाई कर लेता है कि वो कंफ्यूज नहीं होता है। तो लीनियर इक्वेशंस आर जो पेयर्स होते हैं, 3 वेराइटीज़ हैं। वन इज एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, दूसरा है कोइंसिडेंट, और तीसरा है डिस्टिंक्ट। इनमें से यूनिक सॉल्यूशन किस में आएगा? डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट इक्वेशन का नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ ए डिस्टिंक्ट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर की बात हो रहा है, और तुम यहाँ पे पेयर की बात हो रहा है। बताओ यूनिक। क्या यूनिक? यूनिक बोल देने से क्या हो जाएगा? मैं क्या पूछा, मैंने पूछा कि आप आंसर क्या क्या दे रहे हो? नेचर पूछे, नेचर ऑफ द इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस जब वो डिस्टिंक्ट हैं तो उसके लिए आंसर क्या आएगा? यूनिक। यही है बच्चों में जो स्ट्रेस बिल्डअप करता है। लोग को ध्यान रखना है, बच्चा एक तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है? मॉकअप स्टाइल में कर रहा है, कर दे रहा है एनी हाउ। आर.डी. शर्मा जैसे बोल रहे हैं कि खत्म नहीं हुआ है, जबकि अभी 1.5 महीना हो चुका, और शायद हमने लीनियर इक्वेशन पहले महीने में कर दिए थे, फर्स्ट ही मंथ में, मतलब आप मई में जो वैकेशन शुरू हुआ, मिडिल ऑफ द मई में, दिस इज द मिडिल ऑफ जून, मिडिल ऑफ मई में ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दैट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस। एक अच्छा स्टूडेंट्स का हमने को नहीं बताया हुआ कि चैप्टर खत्म हो जाए तो उसका करस्पॉन्डिंग रेफरेंस बुक भी खत्म हो जाना चाहिए। ट्रू और फॉल्स? बताया गया था। और वो भी एक साथ करोगे तो 150-200 प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो पैटर्न फॉलो करना, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज में करोगे तो सर्टन प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स। फिर भी नहीं हुआ है, मतलब 1.5 महीने में उस चैप्टर में 150 प्रॉब्लम होंगे, फिर भी बच्चे ने किया नहीं है, बोल रहा है कि नहीं किया है। एग्जाम है 4 दिन के बाद, और ये लोग बार बार रिपीट भी किया गया कि खत्म करो, डाउट पूछो, खत्म करो, डाउट पूछो। करेगा तो डाउट पूछेगा। सो पॉइंट इज दैट कि चाइल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक चीज वो नहीं किया है, आधा किया है, आधा नहीं किया है। सो जो आधा किया इतना से भी छोड़ देगा तो बंदे को क्वेश्चन आ जाने से बोलने लगेगा उसको मैंने जो छोड़ा था उसमें से क्वेश्चन आ गया क्या, कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है। सो 1 राउंड every problem is to be done, second third round not all problems, selected problems,
धीरे धीरे वो इंटेंसिव होता जाएगा, बट वेरी फर्स्ट लर्निंग इज एक्सटेंसिव A to Z, वो आपने नहीं किया। एंड सेकेंड थिंग, हमारा बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एवरी टाइम यू क्वेश्चन द सेम थिंग, जो उसने डाउट पूछा था क्लियर होता, वो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो ये बच्चे पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, बच्चे को पूछिए, क्रॉस कीजिए। सो राइट नाउ वी आर मेकिंग क्रॉस वेरिफिकेशंस। अभी क्रॉस वेरिफिकेशन मैंने जैसे पूछा कि वो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तुम्हें कैसे पता चला कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन निकालना तो बात की बात है माय डियर। लीनियर इक्वेशन का डिस्टिंक्ट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, उसको वो कैसे पता चले? उसको फर्स्ट दो कोएफिशिएंट्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सी, हाँ हाँ, फर्स्ट दो कोएफिशिएंट्स अनइक्वल होने से पता चलेगा। जैसे सोमी कहाँ पे किए हो? नहीं, वो करने की बात छोड़ो, तुम्हें शो करो कि कॉपी में कहाँ है वो चीज़। यहाँ है, यहाँ है, गेटिंग मी? हाँ। क्या हाँ? ये दिख नहीं रहा था आपको? अपने ही तो लिखे हो। डिस्टेंस। हाँ, तो ये डिस्टेंट है ना, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तुम ये नहीं बोल रहे थे कि जब पहला दो पेयर ए एंड बी वो दोनों अगर अनइक्वल हो जाएंगे तो वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, बोले नहीं थे? तुमने नहीं लिखे हो, फिर तुम इसको रिलेट नहीं क्यों कर पा रहे हो? इसको इसके साथ रिलेट क्यों नहीं कर पा रहे हो? यही प्रॉब्लम होता है मैथ्स में। तो इसीलिए उसको मैथ्स मतलब ऐसा कि नहीं कि वो कर नहीं पाएगा, बट नेवर क्वेश्चन हिमसेल्फ। जैसे एसएसटी पढ़ते हैं, मॉकअप कर देना, लिख देना है, कर दिया, हाँ मैंने खत्म कर दिया, दैट एटीट्यूड इज देयर, शुड नॉट बी देयर। एनीवे, तो यहाँ पे आप दिखाओ एग्जैक्टली क्या किए हो, कैसे किए हो। 2x + 4y = 7। ये 2x और 4x ए कोफिशिएंट्स है, इनका रेशियो है 1/2। और एक सेकेंड, 2x और 4x कोफिशिएंट्स कौन? 2x एंड 4x आर कोफिशिएंट्स। नहीं, फिर 2 और 4 और कोफिशिएंट्स। ये तुमने क्लियरली अभी बोले थे, नहीं, वीडियो है देख लेना, दिस इज नॉट अपलोडेड। सो कोफिशिएंट्स आर 2 and 4, तो रेशियो इज 2/4, करेक्ट। नेक्स्ट 1/2 रेशियो, ठीक है, 2/4 को अपने 4/, और 6 है, कोफिशिएंट है 4/6, और इनका रेशियो है 2/3। ओके, और हम देखेंगे कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है या अनइक्वल है, तो हमें पता चला कि इसके तो ये चीज़ आपका पहली बार में क्यों नहीं निकल रहा था? क्योंकि खुद को क्वेश्चन तुमने किए नहीं थे। किताब में मैंने ये चीज़ पढ़ाते हुए तुम्हें टेबल दिया था एकदम शॉर्ट में, गेटिंग मी? शॉर्ट में लिखे थे, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, याद रखना है हमें। A1 A2, B1/B2, C1/C2। वाई 3 पेयर क्यों है? एक है स्क्वायर टर्म है, दूसरा एक सॉरी 2 वेरिएबल्स है, एक x वेरिएबल और y वेरिएबल, और दूसरा एक है कांस्टेंट। तीसरा लाउड एंड क्लियर कॉन्फिडेंट वॉइस में। फर्स्ट दो हो गए वेरिएबल्स x और y, और तीसरा हो गया कांस्टेंट टर्म। जो बोल रहे हो लिखो कॉपी में, नेक्स्ट पेज में, क्विक। इस चीज़ को बोलने के लिए उसको कितना फंबल करना पड़ रहा है, जबकि चैप्टर खत्म, मैथ्स का प्रॉब्लम भी अच्छा कर लेता है, पर ये बोलने में समय लग रहा है कि वाई देयर आर 3 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स की बात हो रहा है। 3 पेयर्स ऑफ व्हाट? टर्म्स। 3 पेयर्स ऑफ टर्म्स, नो, 3 पेयर्स ऑफ कोफिशिएंट की बात हो रहा है। 3 पेयर्स ऑफ कोफिशिएंट। A1 क्या है? कोफिशिएंट किसका? x वेरिएबल का। गेटिंग? शी नोज। बट क्रॉस एनालाइज करने से, जैसे हम बोलते हैं कि ना डस्टिंग करना है, घर साफ है लेकिन एवरीडे डस्ट गेट्स डिपोजिटेड थ्रू द विंड वेंट्स एंड वी क्लीन देम, ब्लोइंग, सक्सन। आप वैक्यूम क्लीनर अगर यूज कर रहे हो, सो ब्लो भी करोगे, सक्सन भी यूज करोगे, तो यूज दैट ऑन द चाइल्ड। तो उससे क्या होगा? इससे क्रॉस क्वेश्चन करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। ये जो हम कर रहे हैं ये सारे स्टूडेंट्स किए होंगे तुम्हारे लेवल के। नहीं, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस कब डिस्टिंक्ट है, कब इक्विवेलेंट है, एंड कब कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट स्पेलिंग बता। COINCIDENT। उसका ओरिजिनल वर्ड क्या है? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या है? ओवरलैप करना। मतलब एक सिंगल थिंग की तरह दिखता है पर सिंगल थिंग नहीं है। हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। मतलब एक लाइन के ऊपर अगर दूसरा लाइन गिर जाएगा तो दोनों लाइन को हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। ये है पैरेलल लाइंस, क्या है आपको दिखाने के लिए,
मैं आपको कर सकता हूँ, ये है पैरेलल लाइंस, ये है कोइंसिडेंट लाइंस। वंस अगेन शो मी। ये है पैरेलल लाइन और ये है कोइंसिडेंट लाइन। इसके एक के ऊपर मतलब क्या हुआ ना, एक के ऊपर दूसरा गिर गया, सो इट लुक्स लाइक अ सिंगल लाइन। हाँ। जबकि ये रहेगा तो ये पैरेलल लाइन से थोड़ा गैप में भी रह सकता है, पास में ही रह सकता है। छोटे छोटे चीजें हैं, बच्चों को करने से वो क्या है ना, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। सो हम मैथ्स तो करते ही है मैथ्स जीनियस में, mathsg.in एंड english.in जैसे हम देख रहे हैं, यही क्रॉस क्वेश्चन से करते रहते हैं। तो बच्चे ने मैथ्स कर लिया है जितना करना था। उसका स्टैंडर्ड नहीं है कि आर डी शर्मा एक हफ्ते में 4 बार खत्म कर दे, वो नहीं है उसका प्रॉब्लम सभी वाला। ठीक है, जितना है जितना किया। एनीवे, सो हमने बात करते, लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, व्हाट वाज माय लास्ट क्वेश्चन? लीनियर इक्वेशन 3 कोएफिशिएंट 3 कोएफिशिएंट्स। मैंने 3 कोएफिशिएंट्स की नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था 3 पेयर्स जो बोलते हैं, 3 पेयर्स क्यों हैं? तो 3 पेयर में से आएगा, 1 पेयर में 3 कोएफिशिएंट्स, तो 3 गुड पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन मेरा मैंने पूछा था व्हाट वाज माय लास्ट क्वेश्चन, मैंने ये नहीं पूछा था। सो ऑलवेज फोकस ऑन दैट। एनीवे, तो 3 कोएफिशिएंट कैसे है? दोनों वेरिएबल के आगे और एक तीसरा आगे। कहाँ है तुम्हारा कोएफिशिएंट? यहाँ पे नहीं है ना? नहीं है। तो कोएफिशिएंट एक्सप्लेन करने वाले हो और तुम्हारे इक्वेशन में कोएफिशिएंट ही नहीं है। नहीं है, करेक्ट? इसलिए कोएफिशिएंट नहीं है। कोएफिशिएंट एक तो तुम्हें कोई डिस्टिंक्ट कोएफिशिएंट तुमने लिखे ही नहीं हो, डिस्टिंक्ट कोएफिशिएंट नहीं लिखे हो इस इक्वेशन में, करेक्ट? बट डज इट मीन दिस लीनियर इक्वेशन डजंट हैव एनी कोएफिशिएंट? वैसे नहीं, इसका कोएफिशिएंट है। क्या है? 1। किसका दिखाओ, एक वो ऊपर लिखो, जो लिख रहे हो ऊपर छोटा लिखो, क्या बोलना चाह रहे हो? 1 कोएफिशिएंट है इसका, और इसका भी 1 कोएफिशिएंट है। और कांस्टेंट हम किसी भी नंबर को ले सकते हैं, जैसे इसकी 1 2 3 5 8 -12 -22, एनी इंटीजर, एनी फ्रैक्शन ले सकते हैं। फ्रैक्शन, हाँ, एनीथिंग कैन बी टेकन। तो ये तुम्हें नहीं पता था आंसर? पहली बार जब मैंने पूछा कि यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं लिए हो, तुमने बोला ना सर नहीं लिया, एंड यू स्टार्टेड उद्यत कर दिया, मतलब यू स्टार्टेड राइटिंग दैट वन, यू आर गोइंग टू आई स्टॉप्ड यू, क्योंकि मेरे सेकेंड मोमेंट में मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, अरे मैंने तो गलत बोल दिया, इसमें कोएफिशिएंट नहीं है बोल दिया। आज ए टीचर आई क्रॉस एनालाइज्ड माय ब्रेन इमीडिएटली, मैंने बोल दिया कि इसमें कोएफिशिएंट नहीं है, फिर स्ट्राइक किया, अरे कोएफिशिएंट नहीं है कैसा? डिस्टिंक्ट कोई कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन 1 तो हरदम है, आइडेंटिटी वाला तो हरदम है। सो यहाँ पे डिस्टिंक्ट कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट कोएफिशिएंट लिखना चाहोगे तो लिखो बगल में बड़े अक्षर में विद द सेम साइज ऑफ द लेटर। इसको काट दो, लिखो कुछ भी कांस्टेंट में कुछ लिखो। अच्छा, ये जो तुमने लिखे थे अभी जो लिखे हो, हाँ, अच्छा इसको 3 और 2 और यहाँ पे 5 लिखे हो, तो ये क्या हुआ? और लिखो ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखो क्विकली, ax प्लस बी एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखो, करेक्ट? हाँ। अब ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है? यहाँ पे हम जब 3 देख रहे हैं, ये यहाँ पे a है, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है? ये वाला एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन। लाउड एंड क्लियर। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, और ये वाला भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये है उन दोनों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। गलत। आप देख रहे हैं, ऑडियंस जो भी वीडियो देख रहे होंगे, बच्चा कितना कंफ्यूजिंग आंसर्स देता है। ये 2 लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें x इज 1 वेरिएबल, y इज सेकेंड वेरिएबल, whereas a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is a constant। इसी फॉर्मेट में ये इक्वेशन है, तो ये एक स्पेसिफिक इक्वेशन है, ये एक जेनेरिक फॉर्मेट है। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। इज इट अ लीनियर इक्वेशन और इज इट अ लीनियर इक्वेशन? नो, इट इज अ फॉर्मेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। करेक्ट। So now this is a specific case of a linear equation जिसमें 3x plus 2y plus 5 is equal to 0। अब इसका इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन लिखो क्विकली। बाय द वे मुझे पता इक्विवेलेंट लिखने के लिए आप क्या करोगे, क्विकली बताओ। इनका रेशियो सेम करना पड़ेगा। करोगे कैसे? रेशियो कैसे सेम करोगे? किनका रेशियो सेम करना पड़ेगा? इन तीनों कोएफिशिएंट्स। क्लैरिटी में बताओ और स्पेसिफिक बताओ। दोनों लीनियर इक्वेशंस हम लिए, हाँ लेंगे, तो सेकेंड वाला लेंगे, लेने हैं
लेने के बाद हम देखेंगे ये तीनों कोएफिशिएंट्स जो है, वो तीनों नहीं, x कोएफिशिएंट, हाँ, y कोएफिशिएंट, मेक इट लाइक और दैट, constant, मेक इट लाइक दैट की इनका जो रेशियो है यस same है। यस, क्योंकि आंसर आप लिख लिए, हाफ मार्क कट गया, क्यों? यूनिट गलत हो गया है। गेटिंग में डजन्स लिखना था, हमने 12 पीसेस लिख दिए। वो पूछा था क्वेश्चन में, हाउ मेनी डजन्स ऑफ द बनाना लेफ्ट इन द बास्केट, एंड यू रोट 12। जो 12 लिखे थे वो 12 पीसेस आप मीन किए हो, मतलब 1 डजन। तो आंसर में 1 डजन नहीं होके 12 पीसेस रह गया, तो आंसर गलत है या सही है? गलत है। एब्सोल्युटली गलत है। तो इवेल्युएटर चाहे तो वहाँ पे पूरा का पूरा काट सकते हैं, आंसर टोटल रॉन्ग। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग बीइंग स्पेसिफिक। तो हम लोग बात कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट कब होगा ना, जब ए बी एंड सी के रेशियो सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, हाँ हाँ सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। करो, तीनों रेशियो अगर सेम हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स A1 बाई, तो बताओ जरा सिंबलिकली बताओ। A1 में A2 इज इक्वल B1 में B2 और वो इज इक्वल टू, C1 में C2। अगर इस केस में क्या वो सॉल्यूशंस इक्विवेलेंट हो जाता है? सॉल्यूशंस इक्विवेलेंट नहीं होता, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो आने से लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? हाँ आई एम सॉरी, लीनियर इक्वेशंस इक्विवेलेंट हो जाता है। लीनियर इक्वेशंस ये जो लीनियर इक्वेशंस इक्विवेलेंट हो जाता है, यू वांट टू से। करो, लीनियर इक्वेशंस इक्विवेलेंट है, ठीक है करो, कंप्लीट करो, मैं पूछूंगा क्वेश्चंस। करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे क्या कर रहे हो? और अब वो x ले लिया तो वो काट रहा था। तो यू आर फाइंडिंग द रेशियो, क्यों मुझे वहाँ पे बता नहीं सकते हो कि अब आर यू किड सर 3 and 6 1/2, और यहाँ पे ये क्या है और क्या 3 and 10 है सर, ये 3 है 6 है तो 1/2 हुआ, ये 2 है 10 है 1/5 हो गया, 5 है 10 है तो 1/2 हो गया। तो ये गलत, अगेन इतना कन्फ्यूजन रहता है। देखो जानता हुआ आंसर भी गलत हो गया। अभी तो बोल रहे ना तीनों रेशियो सेम होना चाहिए, तो ये 3/6 1/2 हो रहा है, 2/10 1/2 हो रहा है क्या? नहीं 1/5 हो जा रहा है। तो गलत हुआ या सही हुआ? गलत हुआ। आंसर पता था कि नहीं पता था? पता था। ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो एग्जाम में वही होगा, करेक्ट आंसर सोच के गए थे, लिख के गलत आंसर आ गए। करो क्विकली। स्विगी जैसे कर रहे थे यहाँ पे, ओके, तो हम यहाँ पे रहे तो मैं वो पूछ रहा था नहीं करना, तो वो वाला पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या हुआ जिनमें रेशियो सेम है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होने से कौन सा सोल्यूशन मिलेगा? इनफाइनाइटली मेनी। वाई? क्योंकि वो दोनों लाइंस ग्राफ में कोइंसाइड हो जा रहे हैं। हो जाने से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। वाई? वो लाइन दोनों कोइंसिडेंट हो गए, वो मैं समझ गया। हाँ। उसके कारण से इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिला, वो भी मैं समझ गया। अगेन मैं पूछ रहा हूँ वाई? ये जो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, कहीं पे भी पॉइंट डाल के वो सॉल्यूशन हमको मिल सकता है। वन सेकेंड, लास्ट लाइन। कहीं पे भी हमको पॉइंट डालेंगे हाँ, तो मतलब कई सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ऐसा कोई। वो लास्ट लाइन को थोड़ा स्पेसिफिक करो। और हाँ, तो जितने एक लाइन की तरह वो दिख रहा है, जैसे हम हाथ से कर रहे थे, ये कॉन्सिडेंट हो गए, दो लाइन्स हैं, एक के ऊपर दूसरा गिर गया, तो सॉल्यूशंस इनफिनिट क्यों हो गए? वाई? क्योंकि इस लाइन में हम कहीं पे भी मतलब एक पॉइंट डालें किधर, वो पॉइंट अनकाउंटेबल है, किधर भी डाल सकते हैं वैसे, तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन उसका आ गया। क्या कंफ्यूजन बना रखा है? पॉइंट डालोगे क्यों? एक लाइन के ऊपर पॉइंट डालना क्यों है? लाइन पे पॉइंट होता नहीं है? तुमने डेफिनेशन नहीं पढ़े वो लाइन का? लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? जॉइंट में टू जॉइंट, बस उतना ही पढ़े हो। इन क्लास 10 यू विल गिव दिस डेफिनेशन। एक जो लाइन होता है वो जॉइन बिटवीन क्या? जॉइन बिटवीन व्हाट? टू पॉइंट। मतलब दो पॉइंट को जॉइन करने से। तो ये क्या फांका है, खाली है, हॉलो है ये पोर्शन? ये दो पॉइंट हुआ, ये और ये एक दो पॉइंट्स में, तो ये जो हवा में गया लाइन, फिर और इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स हैं, फिर से वापस यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, करेक्ट। एक लाइन के ऊपर डॉट 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 कंटिन्यूसली आप पॉइंट 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 दोगे तो दैट इज अ लाइन। मिलता कैसा है ना, दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देने से मिल जाता है। पर तुम्हारा आंसर है लाइन पे हर एक जगह पे एक पॉइंट है, इन्फिनिटली मानो मैंने दो पॉइंट के बीच में और एक पॉइंट आएगा छोटा वाला। तो अभी तुम जो बोल रहे हो लाइन के ऊपर पॉइंट डालोगे का मतलब उसमें पॉइंट है नहीं? पॉइंट लाउड एंड क्लियर पॉइंट है, तो फिर डालना क्या है?
तो तुम्हारे इंग्लिश में प्रॉब्लम है या मैथ्स में प्रॉब्लम है? नाउ यू विल बी टेलिंग द सेम लास्ट लाइन वंस अगेन. तुमने क्या किया, दो लाइन्स हैं, अगर ये कोइंसिडेंट हो गए, एक के ऊपर दूसरा गिर गया, तो वहाँ पे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं. मैंने पूछा क्यों? वो लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करते. गलत. सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? उनका एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होता है. व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस? एक्स एंड वाई. दो लाइंस का सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं. तो इंटरसेक्ट जहाँ पे करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? ग्राफ. वेयर डू दे इंटरसेक्ट? क्योंकि उनका तो उन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? पॉइंट. एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब? जहाँ पे वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं. तो सिंपली द सॉल्यूशन ऑफ टू लाइंस इज वेयर दे इंटरसेक्ट ए पॉइंट. इतना आंसर भी नहीं आ रहा है. द सॉल्यूशंस ऑफ टू लाइंस, यहाँ पे दो लाइन सपोज ऐसे गए, ये है उनका सॉल्यूशन, ये जहाँ पे उन दोनों ने इंटरसेक्ट किए, तो दैट इज अ पॉइंट. सो द सॉल्यूशन ऑफ टू लाइंस इज अ पॉइंट. एंड तुम बोले दोनों लाइन कोइंसाइड कर जा रहे हैं, ओके तो उनका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आ जा रहा है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे लोगे ये सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन. इन्फिनिटली एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स जो भी लोगे वो इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है, बिकॉज वो वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं या कोइंसाइड कर रहे हैं. कोइंसाइड दोनों लाइन कर रहे हैं, लेकिन एक दोनों जगह पे एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पूरे लेंथ ऑफ द लाइन में है. और जहाँ पे डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होता है, दो अलग अलग डायरेक्शन में लाइन जाते हैं, तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, एक ही, ओनली वन. ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है. सो व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दिस थिंग्स? क्लास 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग तुम्हें हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ है. कभी नहीं. सो मतलब अभी तुमने जो बोले कि ए लाइन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पॉइंट्स, मैंने पूछा कि दोनों के बीच में हॉलो है, नहीं है, वैसा वाला तुमने एनालिसिस कभी किए नहीं थे, नहीं किया था. तभी ये सॉल्यूशन आंसर नहीं आ रहा है. दो लाइन कोइंसिडेंट हो जा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि ये मेनी इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है. क्यों? क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है. करके दिखाओ डायग्राम क्विक. क्या समझे? ये भी एक सोल्यूशन है, यहाँ भी एक सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन, ये से सोल्यूशन. इस तरह से इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आ गया. दो लाइन लो, एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन दिखाओ. यहाँ पे वो इंटरसेक्ट किया तो ये हो गया डिस्टेंस. तो सॉल्यूशन ऑफ ए लाइन इज पेयर ऑफ लाइन और मोर देन वन पेयर ऑफ लाइन. मोर देन वन मतलब टू से जगह थ्री लाइन्स होंगे, उनका एक सोल्यूशन होगा या दो सोल्यूशन होगा. अगर 3 लाइन्स लेंगे तो उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? हाई लेवल का स्टडीज है, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रहा हूँ, तुम करना. तो 2 लाइन्स होने से जब डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होता है, एक पॉइंट होता है. यहाँ पे क्या ना, बहुत एनी पॉइंट यू पिक अप इज अ सॉल्यूशन. सो दैट्स व्हाई वी से. अच्छा, इन नो सॉल्यूशंस का लाइन डायग्राम दिखाओ क्विकली. एक्सप्लेन. ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है या कोइंसाइड नहीं कर रहा है या कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन. तो मतलब क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर पैरेलल, तो सॉल्यूशन नहीं है. क्यों? क्योंकि जैसे लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो पॉइंट है. हाँ, ये वो पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वी डोंट फाइंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू लाइंस. करेक्ट. तो इनके लिए जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे उनको क्या बोलेंगे? कौन सा लीनियर इक्वेशंस? ये इक्विवेलेंट होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे? इनके दो लीनियर इक्वेशंस ऊपर कर रहे थे तुम अभी. वो जो दोनों लीनियर इक्वेशंस लिए थे वो डिस्टिंक्ट था या इक्विवेलेंट थे? इनमें से कुछ नहीं था. इन दोनों में से किस में नहीं था? क्या था वो? ये दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या करेंगे? व्हिच टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर देयर? अभी तुम बोले तो दोनों में से कुछ भी नहीं है. नहीं, ये वाला ना 3x. ये दोनों लीनियर इक्वेशंस, मैं तुम्हें क्या पूछ रहा था तब से क्या दिखा रहा हूँ? व्हाई आर यू कंफ्यूजिंग योरसेल्फ? ब्लॉफिंग नहीं होना चाहिए कम से कम. ये दोनों लीनियर इक्वेशंस कौन से टाइप का लीनियर इक्वेशंस हैं? इक्विवेलेंट. और उनका सॉल्यूशन क्या है? इन्फिनिटली मेनी. कौन सा वाला?
यहाँ में से डायग्राम में ये वाला तो दोनों लीनियर इक्वेशंस को कौन सा टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे इन दोनों पेयर को? इक्विवेलेंट। खत्म। तो मुझे दिखाओ ये वाले सॉल्यूशंस के जो लीनियर इक्वेशंस आएंगे, कोई भी एक सिंगल पॉइंट वाला डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन जिसमें आएगा, उनके लाइंस के इक्वेशंस क्या होंगे दिखाओ क्विकली। सो डियर पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जो लोग आप पढ़ते हो करते हो उसमें एक ही चीज़ यही करो, क्रॉस फायर, लॉट्स ऑफ क्रॉस फायरिंग, तो तभी जाके बच्चे का आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए इसका मतलब पूरा स्काई इज क्लियर, मून इज ब्राइट, नो मोर हेक्जीनेस, मून इज लुकिंग वेरी क्लियर। ना इट डिपेंड्स ऑन हिम वेदर ही राइट्स द करेक्ट आंसर एट द करेक्ट मोमेंट ऑफ टाइम या नहीं करता है, क्योंकि ये बार बार वो कंफ्यूजन में रहता है। एक आंसर सही बोलेगा फिर दूसरे मोमेंट में उसको कंफ्यूज कर देगा। वो तभी होता है कि ये क्रॉस फायरिंग और ये जो बर्निंग और डूइंग द थिंग्स डायग्रामेटिकली, मतलब आप क्या करते हो ना, बहुत सारा लिखने का आपका हैबिट है। आपको बोलोगे ऐसे अच्छा लिखते हो, ऐसे अच्छा लिखते हो, इंग्लिश लिटरेचर तुम्हारा अच्छा जाता है, एसएसटी अच्छा जाता है, मतलब जहाँ पे लिखने के लिए 5 लाइन दिया जाएगा तुम्हारा अच्छा मार्क आता है, या जहाँ पे मैथमेटिक्स करने के लिए दिया जाता है वहाँ अच्छा मार्क आता है। जो लिखने में 5 लाइन दिया जाता है तो लिटरल बेंट है होने से क्या होता है ना, कौन सा की पॉइंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा यूनिट रखना है, कौन सा नहीं है, मुझे पता है ये बच्चे का क्या है, जस्ट आई वांटेड टू रिकॉर्ड दैट ऑन द वीडियो, इसीलिए बोला। तो लिटरल बेंट होने से क्या करता है, एवरी टाइम फर्स्ट लाइन शुड बी कोरिलेटिंग टू द सेकंड लाइन, अगर नहीं हुआ तो अकल गुडू थर्ड लाइन नहीं आएगा। मैंने इसका दिखाया वो चीज़। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, यू राइट वन थिंग देन ट्राई टू कोरिलेट विद द सेकंड थिंग, सेकंड स्टेप ऐसा लिखोगे कि वो फर्स्ट स्टेप से कोरिलेट हो रहा है। ये सब चीज़ें थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। बाय द वे कमिंग बैक टू योर प्रॉब्लम, तो ये वाला इक्वेशन क्या बोला, कौन सा वाला बोलो जल्दी, डिस्टिंक्ट वाला नहीं समझ में आया, पूरा पूरा सेंटेंस बोलो। ये वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये डिस्टिंक्ट है। क्यों? क्योंकि इनका ए कोएफिशिएंट का जो रेशियो है बी कोएफिशिएंट के रेशियो के साथ मेल नहीं खा रहा है या फिर अनइक्वल है। तो ये कोफिशिएंट्स के साथ मेल नहीं कर रहा है या उनके रेशियो की बात कर रहे हैं हम? रेशियो। तो किन का रेशियो? तो यहाँ पे कंफ्यूजन फिर से आया, यू सेड द कोफिशिएंट्स नहीं मैच कर रहे, तो ये तो यहाँ पे भी नहीं मैच कर रहा था। 3, 6 इन दोनों कोफिशिएंट सेम थे क्या? Are we talking the sameness of the coefficients or the ratios of the coefficients? Ratios of the coefficients. Then why did you not alter that one and alter something else? Again आंसर पता है गलत। फिर यहाँ पे क्या हुआ है? So 3 और 6 का रेशियो 1/2, 4 और 7 का रेशियो 4/7। ये दोनों रेशियो सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वेशंस डिस्टिंक्ट हैं। करेक्ट। और थर्ड वाला वो सी भी 7/8 है। तो जहाँ पे कोई भी रेशियो मैच नहीं करता है वो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं और उनका सॉल्यूशन ऐसे आता है जिसमें एक यूनिक सिंगल सॉल्यूशन रहता है। और सॉल्यूशन मतलब सिंगल पॉइंट रहता है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है। सो माय डियर श्रेयस, हाउ डिड यू फील अबाउट दिस सेशन? ये सेशन कैसा लगा जो डिस्कस हमने किया? अच्छा लगा। देख रहे बच्चे का आंसर अच्छा लगा। आधा घंटा हो गया इस वीडियो, जो अगर आप कोई ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस वीडियो में हम क्या बोलना चाहें। सो 99 आउट ऑफ 100 वो कब आएगा? जब अच्छा नहीं, इट वॉज वन नेसेसरी पार्ट ऑफ द थिंग विच वॉज लैकिंग इन माई लाइफ। यही प्रॉब्लम होता है सारे बच्चों के साथ। जो नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे कैसे वो देखना है, लेकिन जो पढ़ लिए वो क्या पढ़े, क्यों पढ़े और कैसे किए वो देखना है। ये दोनों चीज करने से क्या होता है ना, बच्चे पे स्ट्रेस नहीं रहता है, ही एनालाइजेस द थिंग्स एवरी टाइम। तो ये सेशन अच्छा नहीं था, आप वीडियो देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये अच्छा नहीं था, इट वाज वन ऑफ द एक्सीलेंट सेशंस अ चाइल्ड नीड्स इन एवरीथिंग। जब हम पढ़ रहे हैं ग्रामर में टेंस पढ़ रहे हैं, ओके, टेंस में हम बोलते हैं कि टेंस आर ऑफ 3 टाइप्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं पूछूंगा क्यों, व्हाई, उसका आंसर क्या है? टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। नेचुरली जो टाइम है वो 3 तरह का होता है। जैसे मैं अभी राइट नाउ प्रेजेंट, कल के क्लास में इट वाज पास्ट, कल जो आएगा टुमारो वो नेक्स्ट है। ये 3 चीज होता है, इसलिए उसको ग्रामेटिकल इंग्लिश में लिखा गया है। तो ये सब चीजों को थोड़ा करने के लिए, सो उसी तरह से हम करेंगे कि वही जो टाइम है प्रेजेंट कब हो जाता है, कब पास्ट हो जाता है। पास्ट जो हम कर चुके हैं, प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं, जो कर चुके हैं उसको इंग्लिश ग्रामर में पास्ट कैसे बोलोगे? आई हैव डन। ये सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ट्रिकी है कि शायद मैं भी आंसर देने के लिए समय लूंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं अपने बच्चे से।
एक सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? एक सेंटेंस इंग्लिश में हम बोलने वाले हैं, ओके? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द स्पीच। और थोड़ा सोचो, बेसिक सेंटेंस में क्या रहता है? वर्ड्स। तो उन वर्डों में क्या क्या रहता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है। So what are different parts of the speeches, correct? तो कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू फॉर्म अ सेंटेंस? नाउन। मैं बोलता हूं एक एग्जांपल, राइट? सेंटेंस कंप्लीट हो गया? नो। हो गया। इनहेरेंटली सेंटेंस कंप्लीट हो गया और उसमें मैंने जो यूज किया वो था राइट। और राइट क्या है? कमांड है। एक वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा था, वो राइट है। वो टाइप ऑफ सेंटेंस में जा रहा है। ये अननेसेसरी स्पॉइलिंग योर ब्रेन बच्चे में है। सिंपल सा चीज को कॉम्प्लिकेट करना इसका हैबिट है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसको क्यों ले रहा हूं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई सब्जेक्ट ऑफ केस स्टडी, जो कि इज ए गुड स्टूडेंट, इज ए गुड स्टूडेंट। 85% एक छोटा सा आ ही जाता है। आता है, ये डज, इट कम्स बैक। हाँ, लेकिन मैं शार्पन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? यू आर अ स्टील ब्लेड, यू इवन कट नाइसली, बट आई वॉन्ट टू कट वेरी शार्प एंड स्मूथली विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, मेकिंग ए वेरी स्ट्रीक एंड क्लीन कट। आपका क्लीन कट नहीं होता, हेजी कट हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, इससे समथिंग लाइक दैट, करेंगे। सो हम बात कर रहे थे जो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज चाहिए है वर्ब। मैंने बोला राइट, समझ गया वो कि लिखना है ना, उसके बाद लिखना था यू राइट, तुम लिखो। तो वहां पे सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच था नाउन, जिसको हम सब्जेक्ट में बोलते हैं, करेक्ट? यू राइट इन योर कॉपी, ऊपर डिकेट आ गया। तो पहला चीज राइट चाहिए। तो ये चीज कभी एनालाइज किए थे? नहीं किया था। पार्ट ऑफ स्पीच पता है? पता है। एंड सेंटेंस पता है? इवन टाइप्स ऑफ सेंटेंस में तुम ये जो बोल रहे थे कि तुम करो, कमांड था, कमांड को अच्छे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, वो भी पता है। मतलब ही इज ए गुड स्टूडेंट, बट प्रॉब्लम क्या है ना, सारा चीज अपने दिमाग में टेकिंग एज ए स्ट्रेस टोटल। सो हाउ डू यू डू दैट? क्रॉस फायरिंग chronology. You can do it yourself. मैंने ये क्यों किया? What is this? Why? How? See you again with another video. This is Jeet and Shreyas from Mastery.in class 10.